Tarot is it is an occult science. The destination is the same. Okay. The journeys are different to do in it. Okay. अगर आपका एक क्वेश्चन है तो वो एस्ट्रोलॉजी में एक फॉर्मेट के थ्रू आएगा. ऐसे क्यों है कि why you are the right person to reach out? अगर कार्ड्स अगर निकालने हैं तो थ्रू टैरो हम उतना जान पाएंगे कि अच्छा दिस इज मे बी लेट्स से अ स्पाइन इशू है. नमस्ते और स्वागत है आप सबका कॉफी विद कोच में. मैं हूं आपका होस्ट द मैड कोच. तो आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनको मैं बहुत साल से जानता हूँ. शी इज़ अ वेरी फिटनेस एंथुजियास्ट. एट द सेम टाइम शी इज़ अ टैटू आर्टिस्ट. बट द मेन थिंग जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू टैरो कार्ड्स. सो वेलकम रुचा. क्यों ग्लैड टू बी हियर. जो बहुत सारे सवाल है आज, बट बेसिक से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज टैरो और ये कहाँ से आया? So, tarot is it is an occult science. Okay. अब हमारे यहाँ पे the awareness is and it has been very low for the past few years, mostly because of movies, because people see the death card in movies. That is where that is what people associate tarot with. मोस्टली हॉलीवुड की मूवीज में बहुत. Exactly. But unfortunately, that is sort of where the awareness sort of ends. But so if we want to compare it to something with astrology, say, for example. Astrology, yes. So the base is that the destination is the same. Okay. The journeys are different. Okay. Because it is an occult science. Okay. Except we do not have the patrika or the kundali, Okay. जो हमें astrology में होती है. So we have cards here. It is a set of 72 cards, and it is Okay. broadly divided in what we term as major arcana cards, which are our What is it? like major arcana. Okay. ARCANA. Okay. हाँ. So the major arcana cards are our life lessons. It is our soul's journey. Okay. So these are very karmic things which we do not have any control over. Okay. So these can be external circumstances, things which we are here to learn, which we are here to go through. And the other half, not half, the other set or the other category will be minor arcana, Okay. which is divided just like a regular deck of cards. It is divided in 4 suits. So like we have hearts, spades, diamonds. Here Okay. we have emotions, we have action, we have thoughts, mind, mental clarity. Okay. And the 4th one is, it will be finances, Okay. the things which make our base or what Okay. we term as security. Okay. And when all of this comes together, it gives us a story of our life. Okay. So everyone's lives, all the questions which we can possibly have about this life, our past lives, definitely the future. Okay. But tarot is best used for guidance on particular situations. Okay. Okay. Or maybe how to navigate a particular phase of your life, what you are going through, or if you have options in front of you. That is where tarot helps you make guided and informed decisions, rather than predicting 10 साल के बाद ये होगा. Okay. हाँ. That So is- practical solutions है basically. Exactly. जो भी. The practical part, again, fortunately, unfortunately, now that is the only thing where the reader's interpretation comes into play. Okay. Otherwise, if you are asking me a question, I draw the cards, and your subconscious or your energy is giving me the answers. Okay. Okay. I have nothing to do in it. Okay. So अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि you're talking about soul और past life. तो ऐसे होता है soul या फिर past life, ये कैसे काम करता है? अगर कोई जा रहा है टैरो के लिए तो how do you know that कि मतलब past life कैसे reflect करती है current life पे? So we do the reading, और मैं reading करती हूँ जब आपका सवाल होता है. Okay. ऐसा होता नहीं है. आई डू नॉट फॉलो दैट मेथड कि आप मेरे सामने आ गए, मैंने कार्ड्स निकाल के मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया. Because that is not the way it is supposed to be, unfortunately. वो तोता होता है वैसे नहीं है. Exactly. ऐसे बहुत लोग करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि उनका सब गलत होता है, बट दैट इज वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेडिक्शन गलत
हाँ। गलत साबित होना हाँ। वो बहुत ज्यादा होता है। ओके बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स है, जैसे जैसे इन एस्ट्रोलॉजी हमारे हमारे सामने कुंडली होती है। Right. तो उसके जो 12 घर होते हैं, ईच हाउस स्टैंड्स फॉर मल्टीपल थिंग्स। अच्छा ऐसे होता है ये? हाँ, ओके सो हाँ that is where your question comes into play. Similarly, so if let's say your question is about maybe career, ओके and if I can see here in the cards, or if similarly in astrology, if I can see maybe that you are going to be home, or Okay. I do not see you traveling, I do not see you going anywhere, Okay. then I'll say कि ठीक है, maybe यहाँ पे काम के लिए जो भी है, मे बी ज्यादा वर्क फ्रॉम होम होगा, और मे बी द फॉर्म विल बी कि आप घर पे बैठ के आप मैनेज कर सको ऐसा कुछ काम ढूंढो और सर्च फॉर दैट प्रोफाइल. Okay. इफ आई सी ट्रैवल हियर, हाँ so I will tell you that go out, go away from where you are right now. Okay. Find a, maybe if it's a job, find something which will need you to travel. ओके So this is where the जो हमारी प्रैक्टिकलिटी होती है वो कार्ड्स के मीनिंग के साथ फ्यूज करने की जरूरत होती है. ओके ये सिमिलरली वे में मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही होता है कि मतलब वो बताते कि ये वाला काम मत करो, ये वाला काम करो. Exactly. वी आर टेलिंग कार्ड. Exactly. ओके So even if आप मेरे सामने आए एक सवाल लेके, मैंने कार्ड्स निकाले, एंड इफ समवन एल्स इज लुकिंग एट योर पत्रिका, द आंसर विल कम आउट टू बी द सेम. दैट्स लाइक 2 + 2 = 4, 3 + 1 is 4. एग्जैक्ट. जो आपका अगर आपका एक क्वेश्चन है तो वो एस्ट्रोलॉजी में एक फॉर्मेट के थ्रू आएगा, जो हाउसेस ऑपरेटेड है उससे जो आंसर निकल रहा है यहाँ पे, बिकॉज आई हैव द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, हाँ. थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैं जितने कार्ड्स निकाल सकती हूँ. तो हर टारो रीडर की अलग स्टाइल होती है. Okay. मैं ज्यादा कार्ड्स निकालती हूँ क्योंकि मेरा फॉर्मेट टारो काउंसलिंग में ज्यादा जाता है. ओके So, which is a mix of tarot जो answers मुझे मिल रहे हैं and psychology as well. So मैं ये देखना चाहती हूँ कार्ड्स में कि आपकी अभी की स्टेट क्या है, Okay. हमारी डायरेक्शन क्या है आंसर्स की, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है. Okay. एंड देन ऑल्सो मैं आपको किस वे में बताऊँ तो वो इफेक्टिव होगा. ओके ओके So that is how I am getting the answer in the form of a story. So our methods are different. Astrology is a science. Tarot is storytelling. ओके हाँ The answers come to me in the story. So मैं जो psychology का बोल रही थी. So for example, if I see कि आप अभी you are not in a good mental state, ओके और मैं आपको बता रही हूँ करो, ये तुम कर सकते हो, तुम करो, हो जाएगा, पर नहीं होने वाला, because you are not in that हाँ. state. So I need to take a मैं थोड़ा सा माइल्डर अप्रोच लेके आई हैव टू जेंटली एनकरेज यू, आई हैव टू गिव यू प्रैक्टिकल स्टेप्स कि अभी आपको XYZ डर लग रहा है. Right. तो वो ओवरकम करने के लिए बेबी स्टेप क्या होगा, ओके तो वो पहले करो, हाँ. देन विल गेट टू द नेक्स्ट स्टेप. Okay, सो okay. दिस इज वेयर साइकोलॉजी कम्स इनटू प्लेस ओके फॉर द गाइडेंस, व्हिच इज व्हाई दिस टैरो थोड़ा काउंसलिंग के साइड पे ज्यादा है इन शॉर्ट. ज्यादा जाता है, और अगेन दैट इज द वे आई चूज. बट व्हाई मतलब ऐसे क्यों है कि व्हाई यू आर द राइट पर्सन टू रीच आउट? अगर कार्ड्स अगर निकालने हैं तो अगर ऐसे कुछ अलग से करना पड़ता है टू बिकम दिस लाइक द प्रो इन दिस? वो पर्सनालिटीज, ऑब्जेक्टिविटी, आपके पास कितनी ऑब्जेक्टिविटी है टू इवन लुक एट अ सिचुएशन, ओके और टू गेज कि इसके ऊपर क्या डिसीजन या क्या गाइडेंस देना वुड बी द राइट थिंग. दैट इज द मेन थिंग हियर. ओके टैरो कोई भी सीख सकता है, श्योर sure. थियोरेटिकली मुझे भी बहुत लोग पता है जो टैरो सीखे हुए हैं. Okay. बट व्हेन यू ड्रॉ द कार्ड्स, एंड स्पेशली अगर मैं खुद के लिए रीडिंग कर रही हूँ या मैं मेरे माँ के लिए रीडिंग कर रही हूँ, हाँ. तो यहाँ पे योर इमोशंस ऑलवेज गेट इन द वे. ओके तो अगर माय मॉम आस्क्स मी समथिंग उसकी हेल्थ के बारे में, हाँ. तो मुझे अंदर में मुझे नहीं ये सब अच्छा होना चाहिए, हाँ. मुझे अच्छा आंसर चाहिए. सो अगर मेरा माइंडसेट वैसा है तो यहाँ पे अगर इवन इफ आई एम गेटिंग अ वार्निंग कि Okay. उसको अभी
ये करने की जरूरत है, शी नीड्स टू बी केयरफुल, और हेल्थ के भी आंसर्स मिल जाते हैं. सो इफ आई कैन सी कि लेट्स से उसका नर्वस सिस्टम का इशू हो सकता है, स्पाइन का, इतना डिटेल मतलब पता चलता है इसमें? अगर आपके क्वेश्चंस वैसे होते, ओके, इफ यू आस्क मी अ ब्रॉड क्वेश्चन, मेरी हेल्थ का क्या होगा, एंड मैंने निकाला, तो मैं इतना डीप नहीं जाऊंगी, बिकॉज कार्ड्स हैव अ वेरी साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन. सो इफ आई टेल यू नहीं, योर नर्वस सिस्टम इज एट डेंजर, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा. राइट. तो इट इज नॉट एडवाइज कि मैं फालतू के इतना डिटेल्ड आंसर्स दूं. Okay, हाँ. इफ दैट इज योर क्वेश्चन, Okay. कि मेरा कुछ हो रहा है, मेरे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, सो देन यस, वी डेफिनेटली कैन गेट अ, for health, I'm saying we can go up to 60 to 70% accuracy of it. That's enough. Because I am not a doctor. तो मुझे यहाँ पे कैसे दिखेगा for health कि maybe I'll see कि let's say technical fault है या mental fault है, बहुत easy है समझना. Okay. So I will be able to see कि one possibility जो बहुत बार होता है कि ये emotional burden है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है, और उसका अब फिजिकल मैनिफेस्टेशन आ रहा है, जो बहुत कॉमनली होता है. माई बैक इज एकिंग, माई यहाँ से जो साइटिका स्टार्ट होता है, माई शोल्डर्स हैव बिकम स्टिफ. Right. मोर ऑफन देन नॉट ये आजकल दीज आर फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ Mental state. anger, हाँ, exactly, of any mental state. If you have a technical problem, तो मुझे या थ्रू टैरो हम उतना जान पाएंगे कि अच्छा दिस इज मे बी लेट्स से अ स्पाइन इशू है, या बोन्स का है, और दिस इज बिकॉज दिस इज अ लाइफस्टाइल इशू, कि आपने कुछ किया नहीं है आपकी लाइफस्टाइल के लिए. Okay. और वो सब ऐसे इस वेज में इट कैन बी कमिंग आउट. Okay. Now, because I am not a doctor, or we are not doctors, tarot or any occult science, it is not to be taken in as a replacement for a medical Okay. diagnosis. Okay. So this helps. This definitely helps. I have had clients, Omkar, my husband, who is an astrologer, he regularly gets clients. He has doctors as clients कि ऐसे tricky case है, and what do you see which can help us? For COVID, when COVID was impacting everyone's systems left, right and center, and we only knew अच्छा COVID है, but exactly treat क्या करना है. तो एक दो लोगों के ऐसा हुआ था कि their liver got affected, their COVID went, but one person's lungs got affected, one person had a कुछ so pulmonary वगैरह था, I don't remember, but we can get that level or we get a completely different perspective on what is happening Okay. if you ask that question. If you don't, ये conditional है, थोड़ा हाँ. specific जाना पड़ेगा for that thing. Okay. हाँ. because a lot of times people come here or come to us out of especially for tarot, they come out of curiosity कि नहीं मुझे देखना है. Okay. But अगर मुझे ही पता नहीं है तो how it works is, so when I'm trying to get the answer आपके subconscious से, so आपकी energy से, the base rule of or for जो भी occult science हो, कि आपका जब आंसर मिलने का टाइम आएगा तब आपके सामने आंसर खड़ा हो जाएगा. Okay. In other form as well. In any form. तो यहाँ पे we are honored to, or we are sort of we are the mediums here. Okay. But that is it. वही आंसर, and this is the reason आप बहुत बार ऐसे होता है कि हम रीडिंग करते हैं और वो रेजोनेट होता है कि अच्छा मुझे लग रहा था, मुझे ये जो आप कह रहे हैं वो मेरे पिछले साल से मेरे दिमाग में था, बट मैंने वो बाजू में रख दिया, मुझे लगा कि नहीं मेरे प्रायोरिटीज अलग है. बट हमारा सबकॉन्शियस हमसे बात करने की कोशिश हमेशा करता है. Okay. We are never in, most of us, we are not in touch. True. That I agree. So when we do the reading, the answers are coming from within us. Okay. And अगर आपका वो आपके दिमाग में एक
सवाल एट वॉट एवर पॉइंट वो आया है, इसका मतलब है कि उसका आंसर इज देयर अराउंड यू। आपकी माँ आके आपको वो कह सकती है, यू माइट समटाइम्स गेट द आंसर, अच्छा मैं रास्ते से जा रही हूँ और बाजू के रिक्शा पे कुछ पोस्टर है, दैट इज द आंसर, दैट इज द क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था, वो सामने आ गया। या इट इज थ्रू टैरो, थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू क्लैरिटी कहीं ना कहीं से मिलता है। सो राइट, द आंसर्स आर अराउंड अस। हमारे आंखें बहुत टाइम्स बंद होती है। यहाँ पे कैसे होता है कि मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, आई एम फोर्सिंग यू कि मेरा सुनो। राइट, हाँ, दैट्स व्हाई यू आर लाइक कीपिंग योर कॉन्शियस देयर। हाँ, एंड आपकी तरफ से उतना सीरियसनेस आया है कि यू फील द नीड टू कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ मी कि अभी मुझे आंसर चाहिए। और बहुत लोग कम और दे कंसल्ट एनी ऑकल्ट साइंस जब नथिंग एल्स वर्क्स। ओके, ऐसे कभी हुआ है? यू हैव एनी स्टोरी, मतलब कुछ एक्सपीरियंस मोस्ट इफ यू पीपल, कैन शेयर? हाँ, विदाउट नेम्स ऑफ कोर्स। सो कैसे मैक्सिमम लोग एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वो आते हैं जब उन्होंने बाकी सब ट्राई किया होता है। ओके, that is actually even that is the state how I got in tarot. ओके, मैं because of a family illness मैं थक गई थी बाकी लोगों को सवाल पूछ के, और Okay. कितनी बार पूछ सकते। राइट, हाँ, So that is why मुझे खुद से आंसर्स चाहिए थे। ओके, That is why I wanted to learn tarot. अब tarot क्यों मुझे नहीं पता। राइट, हाँ, मेरे घर वाले they were not really for tarot because tarot black magic is the general conception, misconception. तो मैंने जब I mentioned this घर पे and they're like नहीं वास्तु कर, न्यूमरोलॉजी कर, बट मुझे उससे आंसर्स नहीं मिलने वाले थे। एंड in these things, in these sciences or occult skills, हमारा उतना कंट्रोल नहीं होता। ओके, So that science or that thing, it picks you and ओके, it takes you over. हाँ, So मेरी पर्सनालिटी भी वैसी है कि मुझे घर वालों ने ना बोला तो that sort of नहीं, तो मैं यही करूंगी और मैं So I learned tarot on my own at the start, but that was because I wanted answers for myself. ओके, मेरे ऊपर उल्टा गेम ऐसे पड़ा कि एट द स्टार्ट आप में उतनी क्लैरिटी नहीं होती कि आप खुद के लिए आंसर्स देखो। ओके, सो मैंने सीख लिया। मैंने पहले एक आई थिंक 2 months मैं उतना ही कर रही थी, वो भी चुप के मेरे रूम में बैठ के। मैंने मेरे फैमिली को भी बाद में बताया कि ठीक है, अब मैं आई हैव रीच्ड दैट स्टेज कि मुझे पता है और मुझे आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो थैंकफुली वो दोज एक्सपेरिमेंट्स ऑन द फैमिली दे टर्न्ड आउट वेल, बट बहुत स्केप्टिसिज्म था कि my father is a complete atheist, so I come from an atheist family. ओके, तो उनके लिए लाइक इवन एट दिस स्टेज नाउ मैं टैरो 8 साल से I have been doing it professionally. I have been giving professional readings. Okay. Giving professional readings as in I have reached the stage where I can tell you कि okay, I am qualified और आप मेरा सुन सकते हैं without. Right. That experience matters always. So for the first I think 1.5 years मैंने सिर्फ खुद के लिए friends, family वो एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए, या फ्रेंड ने किसी को बोला है, बट इट वाज ऑल ऑन अ वेरी एक्सपेरिमेंटल बेसिस वेयर आई टोल्ड देम दैट लिसन आई एम लर्निंग। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है, बट प्लीज आप इसके साथ आपका भी जो भी एक्सटर्नल गाइडेंस है वो ब्लेंड करो, डू नॉट रिलाई 100% ऑन। आफ्टर 2 years और maybe even more, then I reached the stage where I could tell you with confidence कि ये दिख रहा है, इसका मतलब ये है, तो मेरा सुनो और आपका ये ठीक होगा बिकॉज आपसे ही आंसर आ रहे। राइट, आई हैव नो, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बट इवन आफ्टर 8 years मेरी माँ अभी भी ऐसे शी स्टिल हैज हर मोमेंट्स कि मुझे हाउ आर यू डूइंग टैरो। इट वाज तो इतना अपोजिट बैकग्राउंड
है मेरा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट। अभी अगर हमको कार्ड्स देखने हैं, जैसे आपने बोला कि देयर इज मेजर एंड माइनर, सो वो क्या है, आप शो कर सकते हो अभी, व्हाट इज मेजर एंड व्हाट इज माइनर? सो दिस इज हमारा जो रेगुलर डेक होता है, सिर्फ इसकी इट हैज इमेजरी एंड देयर आर बहुत सारे डेक्स होते हैं, उनकी अलग अलग इमेजरी होती है। एज अ रीडर ये मेरे पास एवरी रीडर विल हैव मल्टीपल डेक्स, बट सो वी टेंड टू चूज द डेक्स जिसकी इमेजरी हमें ज्यादा पसंद आती है। तो ऐसे बहुत मतलब डार्क ऐसे गोरी इमेजरी से लेके ऐसे कैट्स, सिर्फ कैट्स है, सिर्फ बर्ड्स है, इतने क्यूट लेवल की इमेजरी, इतने वैरायटी ऑफ डेक्स है। बट इट हैज अ मीनिंग अलग। बट हाँ, सो अभी मुझे बताने के लिए भी डर लग रहा है कि निकल दो कुछ तो, अदरवाइज वो मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है दैट माइट अफेक्ट दैट। सो यू टेक दैट कॉल, जो भी दिखाना है यू डू इट विद द मीनिंग की भाई मतलब ऐसे है तो यू गेट दिस मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड एज। ओके, सो सी देयर इज नो क्वेश्चन इन माय माइंड। क्वेश्चन नहीं है तो जो मेरा बेस है, बट आई विल शो यू the few cards which people स्टे इन द प्रेजेंट, स्टे इन द yes. प्रेजेंट। so जैसे ये so अभी आप देखेंगे तो ये उसकी स्कैरी इमेजरी है। ओके, so जो मूवीज में यूज होता है ये है, या देयर इज डेथ कार्ड। हाँ, अच्छा, देयर इज डेथ, देयर इज डेविल, जो मोस्टली ब्लैक मैजिक से एसोसिएट होता है, नॉट नेसेसरी। अगर आपका वो क्वेश्चन है तो शायद वो आंसर सीन नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं है मेरे लिए। सो ये कार्ड्स है जिनकी तो उतनी स्कैरी इमेजरी है। ओके, देयर आर कार्ड्स, अभी आप ये देखेंगे, ओ यू सेड ब्लैक मैजिक, तो अच्छा, द इविल, ओ, and then there are these are this is minor arcana, बट व्हाट इज द मीनिंग? ये सपोज pentacles इसका है। मीनिंग क्या है? तो now again depending on the question, तो अगर okay, I'll give you an example. अभी इसका कैसा होता है, इसका अपराइट और रिवर्स के भी मीनिंग चेंज होता है। मतलब so this is the deck. Okay, sorry. Okay. This ये बहुत बार होता है। हाँ। These cards are not to be ignored. These are what we call as flyaway cards. ओके, तो so ये कुछ तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा होता, हाँ। जो आपने नहीं पूछा बट पूछा होता और ये कार्ड निकलता, तो बाकी कार्ड पिक करने के पहले आई हैव टू गिव दिस प्रेफर। अभी इसका फॉर दिस कार्ड द straight like नहीं say ये safe card. ओके, So the safe meaning of this is that you can be so engrossed आपके ही विचारों में, आपके ही thoughts में, कि you are but you might miss out on जो अपॉर्चुनिटीज है जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, बट यू माइट बी मिसिंग आउट। और ना सो यहाँ पे क्वेश्चन का रेलेवेंस क्यों लगता है? अगर आपका सवाल होता कि मुझे ऐसा क्यों, देयर इज नथिंग हैपनिंग इन, मुझे आंसर मिल गया है। सो इफ द क्वेश्चन, दिस इज आल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि मेरा लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, नहीं ऐसे नहीं, आगे बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, so for that, if that is the question, तो इस कार्ड का रेलेवेंस या आंसर होगा कि you are आपके नो ये जो कप्स है, so these stands for emotions. In one of the four, this is a minor arcana card. Okay. So जो हमारे रेगुलर डेक ऑफ कार्ड्स में हार्ट्स होते हैं, the hearts are linked to cups, which is emotions. Okay. So if you look at the imagery, वो उसके जो आजू बाजू के कप्स है उसी में he is engrossed. Okay. तो these are the cups which you have. हमें पता नहीं कि उन कप्स में अच्छे इमोशंस है या नेगेटिव इमोशंस. Right, हाँ. But when the question is कि
मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तो इससे आंसर द इमेजरी सेल्स कि आप आपके ही ख्यालों में, आपके विचारों में इतने डूबे हुए हो कि आपको जो हो रहा है यू आर नॉट, योर आईज, यू आर नॉट सीइंग इट. Understood. हाँ. So the guidance part here would be to take a step back, maybe write down. Now, this goes in spiritual practices which helps tarot. Like meditation होता है, journaling होता है, a different part. But for the answer, the guidance would be to really open your eyes or to look at your life from someone else's perspective. So ये टैरो में एक सिचुएशन मिल गया, एक practical solution मिल गया. So it Exactly. works like that, right? Exactly. हाँ. And so this is one question. If the let's say a second person comes to me with a question saying, Just shuffle it. Go for it. Face towards that guy and do it. अभी टेक्निकली वैसे देखा जाए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपकी एनर्जी इन कार्ड्स में इट विल बी Correct. Basically. ओके. दिस इज अ I'm conscious. एग्जैक्टली लवर्स कार्ड. Oh. So, now depending on the question, अगर आपका question is about a business partnership, this card उसका फिर भी मीनिंग होता है. Okay. But this is about the balance. Okay. This let's say relationship का question है, upright या अच्छा कार्ड है, reversed हो तो मतलब एक फंडामेंटल इम्बैलेंस है आप दोनों में, where Reverse as in अगर reverse बाहर निकलता. हाँ, so ये कार्ड्स हैं. Okay. मैं While ऐसे pulling. हाँ, so नॉर्मली अगर मैं आपका रीडिंग कर रही हूँ, so I will spread the cards in front of you. तो ऐसे है. Okay. और अगर ये कार्ड निकाला हाँ. तो ये so Okay, this is हाँ, from my हाँ, perspective. हाँ. So ये upright होगा. Okay. But if let's say दूसरा, ये प्लीज ये upright, ये भी upright है. हाँ, हाँ, so ये हाँ. जब आ गया तो this is a reverse card जिसका मीनिंग अलग होता है. अगेन Okay, डिपेंडिंग so ऑन द हम ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि अगर वो नॉर्मल वे में निकला सामने से, दैट मींस द पॉजिटिव, उल्टा निकला तो दैट इज अ नेगेटिव. Is it like that? Yeah. इन लेमन्स टर्म्स यस. Okay. Just easy to understand. हाँ. हाँ, बट कैसे होता है कि यहाँ पे दिस इज वेयर टैरो बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी रैंडम पर्सन टू डू. Okay. हाँ. जो आपका सवाल था कि आप मेरे पास या किसी टैरो रीडर के पास क्यों जाना चाहिए रादर देन एनी पर्सन हु इज डूइंग टैरो. सो अगर मैंने जो डेथ कार्ड निकाला, इफ यू आर आस्किंग, आपका क्वेश्चन है हेल्थ के बारे में, किसी के भी, आपके नहीं, किसी के भी हेल्थ के बारे में, वहां पे डेथ कार्ड आ गया, तो डेथ मीन्स द एंडिंग ऑफ समथिंग, बट इट ऑल्सो मीन्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू आफ्टर दिस थिंग हैज एंडेड. Oh. तो अगर हेल्थ है तो देन इट वुड बी अ निगेटिव कार्ड. Okay. अगर हेल्थ का ही सवाल है, वो निगेटिव वो रिवर्स आ गया, तो द क्वेश्चन, द मीनिंग वुड बी कि आई डू नॉट सी दिस एंडिंग, बट वो प्रोलॉन्ग हो सकता है. Okay. Okay. So this is where objectivity comes into play. If the question is for someone जो who's in a very bad state, Okay. health wise, वो बहुत लो पॉइंट पे है, एंड डेथ वुड बी अ रिलीफ फॉर हिम, एंड सच क्वेश्चंस डू कम वेयर तो ऐसा कभी हुआ है मतलब? ऐसे बहुत बार आता है, होता है, ऐसे बहुत सवाल आते हैं कि मुझे सच में ऐसा चाहिए कि मेरी जो भी है, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, वो इतने बैड स्टेट में है कि मुझे अच्छा लगेगा व्हेन देयर पेन इज ओवर. सो एट दैट पॉइंट डेथ रिवर्स वुड बी, अरे ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है. हाँ. दिस इज वेयर द ऑब्जेक्टिविटी मैटर्स. अगर डेथ अपराइट है तो यस इट कैन, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट डज मीन द can mean the person passing away as well, but in that particular instance it is a good thing. Right. So death card means ऐसे नहीं होता कि हर बार कोई मरने वाला है. There नहीं. can be a situation ending. हाँ, so अगर कोई same thing if it is for a job, हाँ. my boss is troubling me and I am stuck in a job जहाँ पे मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, death card comes, हाँ ये खत्म हो गया है, इसका मतलब मुझे this chapter will end and something new will begin. Right. This is a
purely good situation. Right. This is where the context changes. Right. और जो अगर रैंडम लोग आके कार्ड्स निकाले तो बिकॉज द इमेजरी अभी the imagery can be scary for you. What is this? अब ये क्या? This is moon is pure emotions, but emotions also play with your mind. So this is a card of illusions. No, the wolf fascinates me so. And it is meant, so it is the call. The wolf is responding to the call of the moon. Oh. So that it is that instinct, it is intuition which is telling you or which is guiding you what to do. No. But with moon come a lot of emotions and clarity थोड़ी आपकी affect हो सकती है. Okay. So that is the base meaning of the card. अभी एक when I was doing a reading for मेरा एक US में friend था है hardcore skeptic. Hardcore and he was like नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ से start हो गया. Then he was going through something, so he was like रुचा मेरा इसके ऊपर नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है, but अभी nothing else is working. मैंने सब ट्राई करके हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या करूं. मैं we are good friends, so मैं तुझे बता रहा हूँ कि मुझे भरोसा नहीं है, but just एक take a dart in the void, let's see what comes. And this card came up for his, I think, mental state. शायद spread था, I don't remember the details, but so I had this along with other cards meant depression at that point. And I told him कि see वहाँ पे जो भी हो रहा है that is like we were talking before. So this is a lot to do with your mental state rather than any problem with your finances or with your health. Okay. So if you manage to get this part to a slightly better stage, let's say over the next few months, things will definitely, rather than things will change, your perspective will change and you will be in a better place mentally. Please, yeah. So I told him that you have depression and now I did not know it, but he was diagnosed with clinical depression. वहाँ पे and उसका मुझे कॉल आया, तुझे किसने बताया? Like what do you mean? Because वो यूएस में है for the past 15-20 साल तो definitely होगा. मैं उसकी family No more Indian now. हाँ, so वो यहाँ पे इंडियन वेडिंग्स के लिए आता है ऐसे. Definitely he watched this. हाँ मैं लिंक डेफिनेटली सेंड करूंगी. And he called me, he was like impossible because मैंने किसी को बताया नहीं. My own mother does not know this. हाँ, तुझे किसने बताया? Someone must have told this because tarot वगैरह से ऐसे कैसे पता चला? And like अरे मैं कुछ नहीं कर रही, ये जो बता the cards are telling me. You are the skeptic. और like हम इतना बात करने के बाद I had like me as Rucha as his friend, मुझे zero idea था कि he is facing some problem. And मुझे cards में directly depression, like the answer came to me, मैं उतनी ही surprised थी. Okay. But the cards do not lie. So हम हमारी acceptance levels as humans बहुत कम होती है. बहुत लोग validation के लिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छा जॉब स्टार्ट करने वाला हूँ, अच्छा होगा. That is not the reason, that is not the purpose the tarot should be used for. Okay. ये तुम्हें एक्चुअली गाइड करते हैं बेस्ड ऑन आपकी जो लाइफ है. तो ये वहाँ पे सो आई टोल्ड हिम कि ये डिप्रेशन दिख रहा है, वहाँ पे डॉक्टर की हेल्प इंडिकेटेड है. प्लीज ऐसा मत करो कि मुझे ऐसा कुछ हो नहीं सकता इसलिए मैं देखूंगा कैसे क्या होता है, ऐसा प्लीज मत करो. टेक हेल्प, सीक हेल्प. he did that thankfully. मेरी वजह से उसको I don't know, but जो भी हुआ purpose. But that is जो हो रहा है वो कार्ड से सामने आ जाता है.
अंडरस्टूड हाँ हाँ प्रैक्टिकल अप्रोच है बेसिकली जो भी कार्ड निकलेगा यू हैव अ मीनिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लाइक सीक फॉर द हाँ, प्रैक्टिकल सो वी हैव द मीनिंग वहाँ पे इंट्यूशन डेफिनेटली इट हेल्प्स बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बहुत एक कार्ड का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है हाँ। सो उस पॉइंट पे एग्जैक्टली No कौन more सा card. ये थोड़ा अलग अलग साउंड करेगा लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी में जैसे कुछ अलग सॉल्यूशंस दिए जाते हैं बेस्ड ऑन द हिंदू कल्चर वही वही होता है सो यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल बेस पे दिए जाते हैं तो मुझे ये पूछना है कि वहाँ पे वो चीज़ कैसे काम करती है यहाँ पे प्रैक्टिकल सोल्यूशन कैसे काम करेगा फॉर एग्जाम्पल मुझे किसने बता दिया कि चल जा कल थ्रो सम 5-4 लेमन्स यहाँ पे जाके फेंक दे कट इट एंड एट द सेम टाइम कार्ड यहाँ पे आता है एंड समवन इज टेलिंग यू आर टेलिंग मी सम अदर सोल्यूशन सो ये कहाँ पे कैसे मैच करेगा लाइक यू टोल्ड कि रास्ते तो अलग है लेकिन हाउ दैट वर्क्स एंड सो एस्ट्रोलॉजी के जो रेमेडीज होते हैं वो प्लैनेटरी या जो वहाँ पे जो रूलिंग प्लैनेट्स है रूलिंग गॉड्स है उनके लिए रेमेडीज होते हैं कि Okay. अगर आपके जो पत्रिका में एट दैट पॉइंट एक मालेफिक या नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिख रहा है तो उसको उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वैसे रेमेडीज होते बहुत बार दिए जाते हैं उसके साथ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो टैरो में होता है वो भी कई थोड़े लोग देते हैं वो Right. देना जरूरी है जरूरी है सिर्फ नींबू काट के या जस्ट एन एग्जांपल नहीं बट वैसे लाइक फीडिंग काउज फीडिंग क्रोज हाँ डू दीज वर्क यस हाँ। डेफिनेटली बिकॉज यू आर बट पर वो प्लैनेट के लिए है आपको खुद के ऊपर काम करने की भी जरूरत है That is- और अगर वो पार्ट बहुत लोग वो एक्सेप्ट वो दे बहुत डू ज्यादा नॉट rely करते टच हैं ऑन ऐसे इट सिचुएशंस पे कि ये करके सॉल्व हो जाएगा rather than हाँ एग्जैक्टली हाँ। सो वो सेम हो जाता है कि अच्छा आप ये स्टोन पहन लो सब कुछ ठीक हो जाएगा वैसा नहीं होता ये ऑल दीज रेमेडीज आर कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट supplement ऑल रेमेडीज आर सप्लीमेंट्री उसके एक स्टेप आगे या पहले आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत होती ही है मेड बी एज सिंपल एज हाँ मुझे क्लैरिटी होना जरूरी है कि मुझे अभी क्या करना है लॉट ऑफ पीपल दे टॉक अच्छा मैंने अभी बात करना शुरू कर दिया अबाउट माई प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली मैं 1 घंटा बात करूंगी बट उसके बाद अगर मैंने आपको एक सवाल पूछा कि आपको इससे क्या चाहिए okay व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ द रीडिंग हाँ। तो वो नहीं पता देन हाँ। वो सिर्फ वेंटिंग हो जाता है understood सो उससे कुछ अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड रीडिंग नहीं है या सॉल्यूशन सिर्फ बात करना भी जो काउंसलिंग या थेरेपी में होता है इफ इट इज नॉट सॉल्यूशन ओरिएंटेड हाँ तो इट बिकम्स द सेम एज आप आपकी दोस्त या माँ से बात कर रहे हो understood और सिर्फ बात करके उस टाइम तक आपको अच्छा लगा ठीक है हाँ पर कल जाके आपके प्रॉब्लम सेम होने वाला है हाँ प्रॉब्लम मीन्स राइट राइट तो बेसिक क्लैरिटी क्या अगर मेरा काम का भी कुछ ठीक नहीं हो रहा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं है मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है आपको चेंज होना है या नहीं ये पहला सवाल होना चाहिए हाँ हाँ बहुत लोगों को वो करने की ही इच्छा नहीं होती या दे डू नॉट मतलब कुछ भी चेंज करने के लिए गट्स लगते हैं और agree हाँ टिल द पॉइंट आपको वो करना नहीं है कुछ भी कोई रीडिंग ना कोई नींबू काट के किसी को देना इसका कुछ भी या कोई भी स्टोन पहनने से कुछ भी नहीं होने वाला supplementary simple so if I'm taking the action now let's say this is a citrine so this is for general happiness levels like joy levels अगर इफ हाइपोथेटिकली अगर मैं ये पहन रही हूँ कि मेरा ओवरऑल मूड अच्छा रहे बट मैं ये पहन के इफ आई एम गोइंग टू बी फाइटिंग विद पीपल मैं जा के मेरे फैमिली में ये ऐसा क्यों नहीं हुआ ये क्यों हुआ अगर वो करते बैठो तो ये क्या करेगा true हाँ लोगों की वैसे एक तो लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं और दी एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो रीडर्स हमारे इस साइड के लोग वो उतना क्लियरली उन्हें बताते नहीं है कि लिसन 2 डिफरेंट थिंग्स
तुम्हें काम करना ही है एंड देन हाँ। ये बाकी का इट विल वर्क. अंडरस्टूड. राइट. सो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है मतलब जो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होना था फिर हो गया, ऐसे कोई स्टोरी आपकी दिमाग में प्रैक्टिकल? तो ऐसे another friend of mine यहाँ के जो हम प्रैक्टिकल एडवाइस के बारे में बात कर रहे थे कि सी आपका इसके ऊपर विश्वास हो या नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. जो होना है द मेन थिंग्स, जो मेन चीजें होनी है, या अगर आपका या प्लानिटरी अगर कोई टाइम खराब हो या गलत हो फॉर अ पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल आपने मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड सुना होगा. होता है जो हमारा बुध प्लैनेट होता है वो साल में 3 या 4 बार स्लो डाउन हो जाता है उसके ऑर्बिट के बाहर, एंड दैट इज अ टाइम कि चीजें जो चालू है वो स्टॉल हो जाती है. वो बंद पड़ती है. आपको उस टाइम में नई चीजें शुरू नहीं करनी चाहिए. ओके. बिकॉज अगर लेट्स से इवन नाउ अभी इस 2-3 दिन में अभी रेट्रोग्रेड स्टार्ट होने वाला है. तो अभी अगर कुछ नया स्टार्ट करो तो इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 weeks 22 days. ओके. तो उस टाइम में वो चीजें आगे जाएंगी एंड देन द स्टेट चेंजेस कि मर्क्यूरी फिर से डायरेक्ट हो गया. तो देन दैट थिंग स्टॉप्स. ओके. तो दैट इज ये खासियत है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की. आपके दिमाग में कंफ्यूजन होना या वी डोंट नो हु टू ट्रस्ट कि मैं ये करूं या ना करूं. ये होता ही है. सो इट इज अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, फॉर प्रिपरेशन. कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है वो अभी मैं पूरा प्रॉपरली सेट करूंगा, प्रॉपर रिसर्च करके आई विल प्लान एवरीथिंग आउट और बाद में जाके आगे जाके मैं वो स्टार्ट करूंगा. अभी लोगों को अगर ये बोलो कि 10 दिन है, 12 दिन है, 15 दिन है, चिल कर, थोड़ा सा पॉज, रिसर्च कर, सेट कर. दे डोंट वांट टू डू इट क्योंकि अभी दिमाग में आया मुझे अब भी करना. बट when the time is not right for a particular thing, वो नहीं होने वाला. एंड पीपल थिंक कि नहीं मेरा इसके ऊपर विश्वास नहीं. हम कोई नहीं है इन प्लैनेट्स के सामने, हम बहुत छोटे. सो मेरा अगर एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं है, द प्लैनेट्स डू नॉट केयर. जो होना है वही होना है. अगर आपके जो चार्ट में आपका अगर बहुत मेंटल टर्मोइल चालू है या आपकी हेल्थ का कुछ ऊपर नीचे का टाइम दिख रहा है, सो मैं अगर वो चार्ट देख के आई एम यूजिंग इट टू माई बेनिफिट कि मुझे दिख रहा है अभी मेरा बहुत माइंडफक का टाइम. तो आई डिसाइड टू टेक इट इजी कि मैं हर चीज पे आई एम नॉट गोइंग टू गेट एंग्री. दैट विल हेल्प यू और नॉट. मुझे दिख रहा है कि अच्छा मुझे यहाँ पे हेल्थ का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, सो देन मे बी मैं ज्यादा कुछ रिस्की ना करने जाऊँ. दैट इज हाउ दीज थिंग्स आर सपोज टू बी यूज. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दिस वॉज फॉर हिज वीजा और रेट्रोग्रेड का टाइम था. एंड एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हमें 100% फेल हो जाता. 100% नहीं, बट वो कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है. या मैं एक बोलने के लिए जाऊँ आप कुछ दूसरा ही समझ लो. स्पेशली वीजाज हो या लेटर्स है, एनी थिंग्स विच यू आर सेंडिंग वो गुम हो जाता है. सो कम्युनिकेशन स्टॉल हो जाता है. एंड आई थिंक उसका वीजा ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट हो चुका था. एंड he was going to apply for the next attempt immediately. क्योंकि उसे मास्टर्स के लिए जाना था. नाउ वहां पे उस टाइम पे कुछ रूल था, दिस वाज अ फ्यू इयर्स बैक, कि if your visa gets rejected 2 or 3 times I think in a row, तो आप अगले साल तक you will not be able to apply again. And I think he was on his 2nd or 3rd attempt. मुझे I don't remember this exactly. But ये retrograde था. I told him कि I think 10 दिन बचे थे. Like 10 दिन के बाद अप्लाई कर हो जाएगा. Because मैंने retrograde में I apply, so I'm starting something new. By the time I get the answer, Mercury was going to be direct. So it's a change of state. So ये pure maths था.
ये प्योर लॉजिक था कि ये अटकने वाला है। ओके एंड यू आर लाइक नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सब फ्रेंड 20-25 लोग बोल रहे हैं कि नहीं तू अभी अप्लाई कर, तेरा हो जाएगा। ओके हाँ अरे पर उनका बेस क्या है? हाँ मेरा बेस क्या है? मेरा टैरो है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला बाय टेलिंग यू कि नहीं 10 दिन नहीं, रुको। हाँ, हाँ। बट द चांसेस ऑफ योर वीजा गेटिंग accepted, approved are much better. Already एक बार रिजेक्ट हो चुका है। आफ्टर 10 days हाँ 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 तो उतना अगर, एंड यू हैव कम टू मी, मैं फुकट की एडवाइस नहीं दे रही, यू हैव कम टू मी, सो लिसन टू इट, बिकॉज लाइक आई सेड, आपके दिमाग में जब क्वेश्चन होता है उसका आंसर मिल जाता है, Right. यू हैव टू लिसन टू इट। राइट नहीं सुना, रिजेक्ट हो गया। देन कि अरे तू बोली कि ये नहीं होगा, इसलिए नहीं। अरे नहीं, मेरा जीरो, मुझे अगर इतना पावर होता तो मैं कहाँ पे होती। राइट मेरे बोलने से हो जाता तो हाँ But people, this happens because a lot of times, so हम कभी ऑब्वियस सवाल नहीं पूछते। राइट आप मुझे आके ऐसे नहीं पूछोगे कि मैं बड़ा हूँगा ना, आपको पता है ये होने वाला। आप कौन से सवाल पूछते हैं जहाँ पे आपके दिमाग में कहीं पे तो वो डाउट है, शायद ये नहीं। हाँ हाँ So that is when you are getting the answer. You are lucky enough to get an answer. राइट So we have to, if you're asking the question, please do follow the answer. Right. अगर आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे नहीं पूछना है तो हाँ इट्स बेटर चल तो it's a completely different approach. बड़ा तो हो ही जाएगा जो होना है वो तो हो हो जाएगा। जाएगा। A lot of people prefer that as well. कि नहीं, at least I have the satisfaction कि ये मैंने डिसाइड किया है। So fair enough. हम आपको फोर्स नहीं करने वाले कि नहीं ये है, ये सुनो। राइट हाँ कि हमारा सिर्फ इंडिया का ही पॉपुलेशन इतना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू आंसर और हेल्प एवरीवन आउट देयर हु नीड्स क्वेश्चंस। तो उतना टाइम किसके पास है कि स्केप्टिक्स को भी कन्वर्ट करने के लिए? वो मजा अलग होता है। वो Like your friend. yes, absolutely, it is a different level of satisfaction altogether, but it is not necessary for Absolutely. So this was kind of a completely new perspective on me. ये बहुत सारा सुना होता है ना कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, एटलीस्ट बहुत कुछ होता है, ब्लैक मैजिक एटसेट्रा बट दिस इज समथिंग न्यू जो बहुत कुछ सुनने को मिला और डर भी थोड़ा सा। सो थैंक यू सो मच रुचा फॉर कमिंग हियर। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला और डर भी बहुत लगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे हमें हेल्प मिलती है। आपको क्या सुनने के लिए अच्छा लगता है, अगर आपके कोई और भी सजेशंस हैं हमारे लिए जो आप चाहते हो कि हमारे चैनल पे कोई आके बात करे तो भी आप वो सजेस्ट कर सकते हो। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।